we are talking about maths, but before we start, just a general discussion. My name is Nishit sir. By qualification, I am MBA in finance. I'm teaching mathematics and statistics at 11th, 12th and foundation level of professional exams, maths and stats, which is interconnected. Okay, which a teaching experience of almost 20 years, and I head this branch also for any administrative related work, and I'll be teaching maths to those students who are going for any professional courses. Okay, so 11th 12th maths we will be teaching, and then foundation exams, whatever professional course you do, accordingly we'll decide the course of action. But before we start, what is your name? I want your name, school, percentage, and which college you are opting for. Chal, bol. Hello, my name is Sahil Yadav. I was studying in 7th International School, East. IGCSE. Yeah, Munich. Okay. I've got 81% in 10th grade, IGCSE. I'm going for a quota for 11th and 12th. Okay. And what are you planning after your 12th? I'm planning to pursue CA. CA. ठीक है. IGCSE मतलब तुम्हारा मैथ्स में you used to have calculators. Yeah, one paper with calculator, one without calculator. ठीक है. So you will find a bit Yeah. calculations. You will become slow in that because अभी तक कैसा आता था, टक 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 सीधा हो जाता था. अभी you will have to do it manually, so you have to take care of that. Because IGSE student faces problem in 11th 12th and accordingly. No doubt, if you're doing CA, foundation में calc is allowed, so it doesn't matter. But 11th 12th में calc is not allowed, so you have to be careful. चलो. My name is Harani. I'm from SSRPM. I got 77% in 10th standard and I'm thinking for Somalia. So मैं हरमी धर्मी गुज्जू कोटा. हाँ मिल जाएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में मिल जाएगा, ले लेना, डोंट वेट. ओके ओके. व्हाट सब्जेक्ट्स यू आर ऑप्टिंग फॉर? I'm not opting for maths, but व्हाई? I don't think I'll be able to do that. I'm more interested in history. Like I like this going through the chapters like Upar and I thought it would be interesting. ओके ठीक है, विल कम बैक टू यू धर्मी. चल नेक्स्ट. Hi, my name is Akshata Kaushik. I'm from SSRPM school. I scored 92.6% and I'm hoping for I want to go to NCC. And after 12? CA. What's your name? Akshata. Okay. Hello, good morning. My name is Ragini Pavel. I'm studying SSRPM. Acha, Ragini ma'am. Okay. Yesterday I asked you, right? I asked you na whether you are Ragini ma'am's daughter. I scored 80% in my boards. Currently, I'm planning on Kerala or Sonia for college, and in future, for now, I'm aiming for CA Foundation, but it may change to economics also. That is okay. But how much percent you are carrying? 80. And you are targeting Kelkar or MCC? No, Sonia. सोमया. ठीक है. MCC नहीं लगेगा 80 में. केलकर भी आई डाउट. फर्स्ट राउंड नहीं आएगा, थर्ड राउंड आया तो ठीक है. सोमया येस डेफिनेटली सेकेंड थर्ड राउंड. लेकिन what is the drawback? I'll just explain you that certain things, then we'll come to maths के why maths you should do. Okay. What's your name, beta? My name is Manan Ganatra. I was studying in SKPA school, CBS board. I have got 94.6% in 10th standard and I am thinking to go to Koda College for 11th. Okay. And what about after 12th? That I have not decided, but mostly see. Mostly CA. चलो ठीक है. Good. मनन ना. Okay. SK की मतलब SMPR ना. हाँ. Yes. बहुत जल्दी आया. चल. What's your name? Daria. Which school? Saint Gregory's इधर. City of Joy वाला रोड पे. Okay. And how much you are scoring? And which college you are targeting? KJ Somaya. ठीक है.
चलो गुड. सोम्या के अलावा मिठी भाई. मिठी भाई में तो सोम्या ही ले ले भाई. मिठी भाई तक कौन जाएगा, कंटाल जाएगा, इतना ट्रैवल थोड़ी करने का रहता है. चलो गुड. व्हाट्स योर गुड नेम? देवस्य. विच स्कूल and how much percent? 86. And which college you are targeting? Somaya. And after 12th? I haven't decided. Not decided. Yes. Shivam. SMPR. SMPR. So my CCB. Percent? 90. 90. And after 12th? Not decided. चलो ठीक है. Now before we go ahead, now I want you to understand few things which you can't decide it at the later stage. How many subjects you are having in your 11th and 12th? See, कोई भी professional course करो 11th 12th तो करना ही है तुमको, correct? How many subjects you are having? 66. Which are those subjects? BK, Eco. हाँ उसी लास्ट में, ईगो हट नहीं करने का, उसी एकदम लास्ट होता है. OCM. फिर इंग्लिश एंड सेकेंड लैंग्वेज. बरोबर. अभी सेकेंड लैंग्वेज में ऑप्शंस क्या क्या है? IT, जर्मन, फ्रेंच, हिंदी, मराठी. गुजरात सोम्या है तो गुजराती. संस्कृत भी है. यस. लेकिन गुजराती पढ़ा है क्या किसी ने? तो गुजराती SMPR था तो गुजरात. अच्छा ठीक है चलो, सब्जेक्ट था इस. चलो कोई नहीं. नाउ SP ये नहीं लेने का रीजन, 11-12 करेगा तुम SP, फिर तुम कोई कोर्स मत करो प्रोफेशनल कोर्स. तुम नॉर्मल ग्रेजुएशन तो करेगा कि नहीं करेगा? तो ग्रेजुएशन में 3 साल होता है. FY BCom, सेकेंड ईयर BCom एंड थर्ड ईयर BCom. FY BCom में 11 + 12 का मैथ्स कंपल्सरी आ जाएगा. यू हैव टू डू इट कंपल्सरी. उसमें ऑप्शन ही नहीं है. इज दैट क्लियर? So, suggestion, don't go for SP. It will ruin your career. Because, चलो तुम ये तो ग्रेजुएशन बोला मैंने, सिर्फ ग्रेजुएशन करेगा तो पहले साल में अटकेगा. फिर वो किटी लगता है, वापस एग्जाम दो, किटी लगता है, एग्जाम दो, ऐसा चलते रहेगा. अनलेस यू क्लियर तो इट विल बी अ टॉर्चर फॉर यू. पहला चीज. अभी सपोज यू डू एनी प्रोफेशनल कोर्स, तुम बोलेगा कि नहीं मेरे को CA नहीं करने का है, मेरे को CS करने का है, मेरे को MBA करने का है. कोई भी प्रोफेशनल कोर्स का जो एंट्रेंस एग्जाम है, विच इज एन MCQ एग्जाम ऑलवेज मैथ्स में, ये 11th + 12 प्लस फाउंडेशन का, फाउंडेशन मतलब एंट्रेंस का सिलेबस मिलके आएगा. तो तुम्हारे पास चॉइस क्या है? या तो 2 साल डिवाइड करो मेहनत को, या तो एक ही बार में 3 साल का मेहनत करो. So this becomes a bit difficult to crack. This is difficult to crack. इधर टिकू टिकू करेगा ना, हो जाएगा. क्लियर है? अच्छा. नाउ इन शॉर्ट, यू डोंट लाइक मैथ्स. न्यूट्रल. यू आर इन विच कॉलेज? स्कूल यू सेड? SSRVM. मतलब तुम्हारा ICSE का मैथ्स था, वो जो लेवल का मैथ्स है ना, उसका हाफ लेवल पे अपना 11-12 का मैथ्स है. बिकॉज इट कम्स टू स्टेट बोर्ड नाउ. इट इज नॉट ISC बोर्ड नहीं है वो. तो डोंट गो बाय द इंडेक्स और द क्वांटम. क्लियर? सेकेंडली, आर यू गुड विथ ज्योमेट्री? नो. तो अपने को ज्योमेट्री है ही नहीं. 11-12 में ज्योमेट्री है ही नहीं. एक ही टॉपिक है, ज्योमेट्री रिलेटेड टॉपिक है, लेकिन ज्योमेट्री नहीं है. करेक्ट? तो इतना मैनेज हो जाएगा. डू यू लाइक ट्रिगो? हाँ तो बोल. नहीं तो कॉमर्स में ट्रिगो है ही नहीं, तो मैथ्स में बचा गया. तो सिंपल है. डू यू लाइक ग्राफ?
है सेट रिलेशन सेट्स. डू यू लाइक मीन मीडियन मोड? हाँ वो सब है. तो Y2 ऑप्ट फॉर SP. डोंट मेक दैट मिस्टेक. गो फॉर मैथ्स. इट्स वेरी इजी. इज दैट क्लियर? और सिलेबस भी इतना पहाड़ जैसा नहीं है जैसा तुम 10 में पढ़ता था. लेकिन ये करने का, क्योंकि इसका जो एंट्रेंस है ना, कोई भी कोर्स का एंट्रेंस, उसमें काम आएगा ये चीज. अच्छा, SP लेके, लेट अस से अनदर डिसएडवांटेज. SP लेके तुम क्या करेगा बताओ? SP इज अ थियरी सब्जेक्ट. BAF अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में मैथ्स पहले लगेगा. BAF के लिए मैथ्स तो लगेगा ही. SP is not good for BAF. SP is good for if you do CS. But still if you do CS, मैथ्स तो लगेगा ही, क्योंकि फर्स्ट एंट्रेंस एग्जाम मैथ्स का देना ही पड़ेगा. सो बॉटम लाइन ये है कि डोंट चूज SP. इज दैट क्लियर? अच्छा, अभी कमिंग बैक टू सेकेंड लैंग्वेज. IT शुड बी योर फर्स्ट प्रेफरेंस. लेकिन वो देगा नहीं कॉलेज, क्योंकि IT का सीट्स लिमिटेड होता है कॉलेज में, और वो लोग मार्क्स के बेसिस पे देता है. वेदर इट इज इंग्लिश में इतना मार्क्स और अबव और मैथ्स में इतना मार्क्स अबव. हर अलग अलग कॉलेज अलग अलग रूल फॉलो करता है. क्लियर? तो क्राइटेरियाज उनका क्लियर है. फिर आता है जर्मन. किसी ने जर्मन तो किया ही नहीं है स्कूल में, लेकिन इधर तुम करेगा तो इट विल बी फ्रॉम ABCD. बट इफ यू टेक जर्मन, यू हैव टू टेक प्राइवेट ट्यूशंस फॉर जर्मन टू द टीचर्स हु आर टीचिंग जर्मन. तुम ऐसा खुद से नहीं कर पाएगा. 11 निकल जाएगा, 12 में अटकेगा. क्लियर? फ्रेंच किसी को स्कूल में था तो यू शुड गो फॉर फ्रेंच, क्योंकि तुमने ऑलरेडी बेसिक पढ़ लिया, वही बेसिक रिपीट हो रहा है, तो तुमको क्लास का भी जरूरत नहीं है. 12th में शायद थोड़ा बहुत लगेगा हेल्प, तो उतना हो सकता है मैनेज. ये 3 सब्जेक्ट प्रायोरिटी में इसलिए क्योंकि इसमें 12th में 100 में से मिनिमम 97 और मोर आता है. 100 में से 97 और ज्यादा आता है. मिनिमम 97 आता है बच्चे को. अभी तुम हिंदी लिया समझो, तो अभी हिंदी में कितना है तुमको 100 में से? ले 65. तो ये 11-12 का हिंदी का लिटरेचर थोड़ा टफ है. इज दैट क्लियर? टफ मतलब थोड़ा हाई लेवल है. तो 80-90 स्कोर करना, 90 स्कोर करना इज अ ड्रीम इन हिंदी फॉर मेनी पीपल. आता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ नहीं आता है, तुमको भी आ सकता है, लेकिन इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एफर्ट्स. लेकिन उसके कम एफर्ट में ये सब सब्जेक्ट्स मिलता है, तो कर डालो. इज व्हाट इज माय सजेशन. इज दैट क्लियर? लेकिन ये हर कॉलेज प्रोवाइड नहीं करता है. तो कौन सा कॉलेज प्रोवाइड करता है, तुम्हारा प्रेफरेंस में वो कॉलेज में है नहीं है, वो तुमको ध्यान रखना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? समझ में आया? ओके. हिंदी लिया, मराठी लिया, फिर तुम 12th में बाय डिफॉल्ट 80-90 के बीच में लैंड होएगा. देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर अदर सब्जेक्ट्स वेर यू शुड स्कोर. क्लियर है ना? अभी सोम्या जो लोग ऑप्ट करता है ना, गुजराती कोटा जो बोल रहा है, वो लोग सोम्या वाला क्या चीटिंग करता है ना, वो भी मैं बताता हूँ. वो लोग क्या बोलेगा मालूम है? कि हम तुमको गुजराती कोटे में एडमिशन देगा, लेकिन हम मैथ्स नहीं देगा, हम तुमको क्या देगा? SP देगा. और बच्चा सब्जेक्ट चेंज कर देता है, और फिर बोलेगा सर मिला ही नहीं कॉलेज में. तो ऐसा मत करो, हो सके वहां तक. रिक्वेस्ट करने का नहीं, मैथ्स ही करने का हमको. वो लोग पहले SP का क्राउड भरता है, तो ये ध्यान रखना. इज दैट क्लियर? सेकेंड ध्यान ये रखना है कि तुम कोई भी कॉलेज लेगा ना, इट शुड बी एन आफ्टरनून कॉलेज. लाइक सोम्या में SK सोम्या है, वो मॉर्निंग में. अगर तुम मॉर्निंग कॉलेज लिया तो कोई भी ब्रांडेड क्लास तुम्हारा नहीं लग सकता है. यू कैन ज्वाइन एनी ब्रांडेड क्लास रूम्स, बिकॉज सारे क्लासेस के लेक्चर्स कभी होते हैं? सुबह होते हैं. तो ये सब ध्यान रखना. ये सब मालूम है तुमको कि नहीं मालूम है? श्योर? हाँ. तो दिस इज व्हाट इज द होल सिनेरियो. इसके अलावा एक और ऑप्शन है, लेकिन वो सारे कॉलेजेस प्रोवाइड नहीं करते. यू कैन गो फॉर BK, इको, मैथ्स और SP, मेजरली मैथ्स एंड इंग्लिश. ये 4 हो गए कंपलसरी. मतलब कौन सा निकल गया? OCM एंड सेकेंड लैंग्वेज निकल गया, ये निकल गया. तो इसके बदले क्या आ गया? वोकेशनल सब्जेक्ट आ गया, जिसमें OM होता है और MS होता है. OM इज ऑफिस एंड मैनेजमेंट, MS इज मार्केटिंग एंड
सेल्स। ये भी बच्चा लेता है, ये 200 मार्क का पेपर होता है जिसमें 195 और अबव आता ही है बच्चे को, दोनों सब्जेक्ट मिला के। इसका ड्रॉबैक एक ही है, ये एक ही बैच बनता है कॉलेज में, या मैक्सिमम 2 बैच बनता है, विच पोदार देता है वोकेशनल, एंड इसके क्लासेस नहीं हो सकते, इसका कोई अलग से ट्यूशन नहीं लेता है, क्लास नहीं लेता है, यू हैव टू डिपेंड ऑन कॉलेज टीचर। तो जो कॉलेज टीचर अच्छे होते हैं, कॉलेज टीचर उसको गाइड भी करते हैं बरोबर, बच्चा स्कोर भी करता है। तो इवन दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन इफ यू डोंट वांट टू गो फॉर ओसी एंड सेकेंड लैंग्वेज। और तुम्हारे रिजल्ट में लिख के आएगा ब्रैकेट में VOC, दैट इज वोकेशनल, तो दैट्स ओके, परसेंटेज होता है। तो टू स्कोर हायर परसेंटेज बच्चा ये भी सिलेक्ट करता है। इज दैट क्लियर? यस और नो? समझ में आया? चलो, so this is all about your college scenario. You have to take care of subject selections, college which provides those selections, and the timing of the college which should not be in the morning. Otherwise you will end up in trouble for 2 years. Trouble मतलब फिर तुमको कोई भी क्लास में जाना पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा. You will not get the choice. Is that clear? Yes or no? चलो fine. Now coming back to my subject, which is maths. तो अभी कैसा है, मैथ्स इज नॉट द सब्जेक्ट, बेसिकली ये होता है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। इसमें पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऐसा 2 पार्ट है। जैसे तुम्हारा ICSE या CBSE में पूरा एक बुक होता था जिसमें अलजेब्रा भी होता था, ज्योमेट्री भी होता था, मिक्स भी होता था, करेक्ट? यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 ऐसा सब होता था। वैसा इधर 2 बुक अलग अलग है, एक पार्ट 1 है और एक पार्ट 2 है। पार्ट 2 इज पूरा स्टैटिस्टिक्स, मतलब अभी तुम स्टैटिस्टिक्स में बहुत कुछ पढ़ेगा, एंड पार्ट 1 इज पूरा एल्जीब्रिक, मतलब तुम इसमें कैलकुलेशंस करेगा। इज दैट क्लियर? नाउ व्हेन आई से पार्ट 2 इज पूरा स्टैटिस्टिक्स, तो स्टैटिस्टिक्स में अलग अलग मेथड, अलग अलग पैटर्न, अलग अलग ग्राफ चालू हो जाएगा, which is very easy to score. Clear? Now, how is your paper pattern basically? Now I am talking from 12th point of view, क्योंकि 12th में जो पैटर्न है वही 11th वाला मेंटेन करता है। तो 12th में पेपर है 100 मार्क्स का, जिसमें से it is divided into 2 categories. One is 80 मार्क्स का रिटन एग्जाम, ये प्रॉपर एग्जाम होएगा बोर्ड एग्जाम की तरह, एंड द अदर इज 20 मार्क्स का इंटरनल। तो पहले इंटरनल का बात करते हैं। इंटरनल में क्या होएगा, 20 मार्क इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 5 मार्क का जर्नल। अभी जर्नल का मतलब क्या होता है, कॉलेज तुमको लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस देगा, 50 क्वेश्चन सपोज फॉर एग्जांपल, नॉट नेसेसरीली 50, अलग अलग कॉलेज अलग अलग देता है। असाइनमेंट के लिए तरह देगा, बोलेगा ये तुम बुक में डालो, बुक इज जर्नल। वो जर्नल भी वो लोग बोलेगा इधर से ही खरीदने का, उनका कुछ टाइप रहेगा, नहीं तो बोलेगा कोई भी बुक में डाल के दे दो, तो ठीक है बुक में डाल के वो सॉल्व करके दे देने का। इज दैट क्लियर? वो टाइम पे देने का, उसको बरोबर अटेस्टेशन करके साइन करवाने का तुम्हारा टीचर के साथ, तो वो उसका 5 मार्क है। इज दैट क्लियर? टीचर कुछ चेक नहीं करता है, खाली देखता है बरोबर लिखा है, टिक 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 करके साइन मार देगा। तो ये 5 मार्क पूरा है, फुल है। तो अभी बचा कितना, 15 मार्क। अभी ये कैसे लेता है वो लोग, तो ये लोग 15 मार्क का क्या लेता है, दे कॉल इट एज प्रैक्टिकल एग्जाम एंड वी कॉल इट एज अ टाइम पास। प्रैक्टिकल एग्जाम के नाम पे टाइम पास करता है वो लोग। मतलब वो लोग क्या करेगा, तुम बताता हूं, ये जर्नल में जो तुमने समझो 50 क्वेश्चन डाला है, वो 50 में से ही वो लोग कोई भी 5 पूछेगा और बोलेगा एनी 3 आउट ऑफ 5 अटेम्प्ट करो और सॉल्व करो, और इसके लिए वो लोग कॉलेज में बुलाएगा हॉल टिकट के साथ। इज दैट क्लियर? तो एनी 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 5 अटेम्प्ट करना है, जिसमें से मैथ्स 1 के 3 हो सकते हैं, मैथ्स 2 के 2 हो सकते हैं, या फिर मैथ्स 1 के 2, मैथ्स 2 के 3, एंड एनी 3 आउट ऑफ 5 मतलब ये 15 मार्क का क्वेश्चन हो जाता है, और ये पूरा राइट मिलता है सबको, मतलब ये 20 मार्क फुल मिलता है, प्रोवाइडेड तुमने टाइम पे सबमिट किया है, प्रोवाइडेड
तुम डिफॉल्टर में नहीं है, ब्लैक लिस्ट में नहीं है, तो पूरा मिलता है। तो कॉलेज में कुछ लोग हीरोगिरी करेंगे, कुछ लोग दादागिरी करेंगे, करने देने का। वो लोग कूल बनने के चक्कर में ये सब करते हैं, अपने को चुपचाप अपना काम करने का, कोई धतिंग नहीं करने का, अटेंडेंस बरोबर रखने का। भले सीनियर्स कुछ भी बोले, अरे कर वो बंक कुछ नहीं होता है, अपने को अपना देखने का। अगर वो लोग ने देखा अटेंडेंस आज बरोबर नहीं है या तुम रेगुलर नहीं है, वो लोग के पास राइट है ये 15 मार्क या ये 5 मार्क में से कुछ भी काट सकता हो लोग, तुम कुछ नहीं कर पाएगा। सो इट इज बेटर ये 20 मार्क पूरा पूरा लेने का। फुल देता है, फुल कॉलेज, समझ रहा है? हाँ, अभी कमिंग टू 80 मार्क्स। अभी ये 80 मार्क्स का एग्जाम एक ही दिन पे मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 दोनों देना है आपके। एक ही दिन पे एग्जाम होता है, ऐसा नहीं मैथ्स 1 अलग मैथ्स 2 अलग, एक ही दिन पे होता है। इट्स वेरी इजी। क्लियर? ओके। अभी इसका पेपर पैटर्न कैसा है? 80 मार्क का पेपर पैटर्न इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। सेक्शन 1 मतलब मैथ्स 1, सेक्शन 2 इज मैथ्स 2। नाउ अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल पार्ट, मतलब ये 40 मार्क, ये 40 मार्क, इसमें क्वेश्चन 1 A B C, A is MCQ, B is true or false, C is FIB, मतलब fill in the blanks। ये 6 मार्क का MCQ, ये 3 मार्क का ट्रू और फॉल्स, 3 मार्क का fill in the blanks, मतलब ये टोटल हो गया 12 मार्क, मतलब ये ऑब्जेक्टिव है। फिर क्वेश्चन 2 A एंड B, इसमें हमको any 2 आउट ऑफ 3 अटेम्प्ट करना है। दिस इज अ प्रॉपर क्वेश्चन वेर यू हैव टू सॉल्व, ये 6 मार्क का। फिर ये भी एनी 2 आउट ऑफ 3 सॉल्व करना है, ये 8 मार्क का, मतलब ये एक क्वेश्चन 3 मार्क का, ये एक क्वेश्चन 4 मार्क का। इज दैट क्लियर? क्योंकि 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ना। टोटल कितना हुआ? 26 हुआ। ओके। फिर क्वेश्चन 3A, ये आएगा एनी 2 आउट ऑफ 3, अगेन दिस विल बी 6 मार्क्स का क्वेश्चन। फिर बी आएगा एनी 1 आउट ऑफ 2, ये एक 4 मार्क का क्वेश्चन होएगा। एंड सी आएगा एक्टिविटी, और वो भी एनी 1 आउट ऑफ 2, ये भी 4 मार्क का। तो ये सब मिला के 14 मार्क हुआ। ये हो गया 14, ये हो गया 14, टोटल हो गया 40। समझ में आया? एंड ये सेम प्रोसीजर यहां पे है, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, सेम मैथ्स 2 में आएगा, सेक्शन 2। क्लियर? अभी इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज तुम समझो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिविटी। वो तेरा सीबीएसई में केस बेस्ड क्वेश्चन था, इधर ऐसा नहीं है। एक्टिविटी मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स, खाली फिलिंग द ब्लैंक्स से पहले बॉक्स दिया रहता है, वो बॉक्स भरने का है बस। मतलब पूरा सम सॉल्व करके दिया रहेगा, बॉक्सेस रहेगा जिसमें यहाँ वैल्यू भरना है या स्टेप्स लिखना है डिपेंडिंग, दैट इज एक्टिविटी। उतना करने का 4 मार्क है। मतलब अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करेगा ना, ऑब्जेक्टिव ये 12 और ये एक्टिविटी का 16, इधर भी 12 और ये एक्टिविटी का 4, 16, टोटल 32 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव या यू सेड एज रोकड़ा मार्क्स है 80 में से, विच इज 40%। एंड ट्रस्ट मी, तुम्हारा अगर मार्क्स जाएगा तो भी इसमें ही जाएगा, मतलब इसमें नहीं जाएगा। ये तो परफेक्ट होएगा, ये भी परफेक्ट होएगा, सॉल्विंग एकदम परफेक्ट हो जाता है सबका। मार्क्स जाएगा सिर्फ वो 16 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स में, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में। और जिसने ये ऑब्जेक्टिव्स बरोबर कर लिया ना, वो 100 में से 99 पहुंच गया आराम से। हाँ बोल। पेपर सेम रहता है, सेक्शन 1 सेक्शन 2 होता है, तो आंसर पेपर अलग होता है। सेक्शन 1 यू हैव टू आंसर इन 1 आंसर शीट, सेक्शन 2 यू हैव टू आंसर इन अनदर आंसर शीट। अभी कोई कॉलेज 11 में ही ये पैटर्न में फॉलो करेगा। तो अगर तुम हमारा टेस्ट लिखेगा यहाँ पे, समझो मैं टेस्ट ले रहा हूँ कोई पर्टिकुलर टॉपिक का, मेरा पेपर पैटर्न यही रहेगा। फर्क इतना है, मैं 40 मार्क के बदले 20 मार्क का ले रहा हूँ, तो ये होएगा 2 मार्क का, ये होएगा 2 मार्क का, ये होएगा 2 मार्क का।
6 मार्क का ये ऑब्जेक्टिव रहेगा, उस हिसाब से रिड्यूस कर दूंगा मैं, लेकिन पैटर्न यही रहेगा. इज दैट क्लियर? यस और नो? समझ में आया? सो ऑल द वे डोंट फियर विथ मैथ्स, डोंट टेक अब्रप्ट डिसीजंस. 2 साल बाद सफर करेगा और अभी होएगा. इट इज वेरी सिंपल. क्लियर है? चलो, दिस वॉज योर पेपर पैटर्न एंड नाउ वी कम टू अवर मैथ्स. के मैथ्स में करना क्या होता है. अभी FYJC में आई सेड देर आर 2 पार्ट्स, मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2. अभी FYJC में मैथ्स 1 में 9 टॉपिक है, मैथ्स 2 में 9 टॉपिक है. मतलब टोटल कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं तुमको पूरे साल में? 18 टॉपिक. ये 18 में से कम 12 टॉपिक ऐसे है विच इज रिलेटेड टू योर एंट्रेंस एग्जाम्स. इज दैट क्लियर? फिर SYJC, इसमें मैथ्स 1 और मैथ्स 2, इसमें 8 है, इसमें 8 है. मतलब टोटल कितने हो गए? ये 16 में से यहां पे भी 12 टॉपिक ऐसे है जो एंट्रेंस एग्जाम, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दो उससे रिलेटेड है. तो ओवरऑल तुम लोग 18 और 16 34 टॉपिक्स पढ़ रहे हो. उसमें से 24 टॉपिक ऐसे है जो एंट्रेंस एग्जाम में आता ही है, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में. इज दैट क्लियर? इसलिए वी हैव 2 टाइप्स ऑफ बैचेस. वन इज फाउंडेशन बैचेस, दैट इज एंट्रेंस एग्जाम बैचेस, जिसमें CA एंट्रेंस आ गया, CS एंट्रेंस आ गया, MBA एंट्रेंस भी तुम रेडी हो जाएगा. एंड वन इज नॉन एंट्रेंस बैचेस, नॉन फाउंडेशन बैचेस, विच इज नॉर्मल 11th एंड 12th बैचेस. वी हैव 2 टाइप्स ऑफ बैचेस. क्लियर है? ओके. अभी what we do in maths today, so we will be cracking one concept of a topic so that you know and you understand how we are going to teach and how we need to think in 11th standard. Topic name is complex numbers. Clear? Let us understand this. This is your maths 1 का topic. maths 1 का 3rd topic है ये, और हर कॉलेज ये टॉपिक पहले चालू करेगा. सो ड्रॉबैक क्या है मालूम है? समझो तुमने सोमया लिया, सोमया पहला 3rd टॉपिक करेगा, फिर 5th टॉपिक करेगा और 7th टॉपिक करेगा. पोदार करेगा 1st 2nd, और यूनिट टेस्ट में सबको 1 2 3 5 7 ऐसा रहेगा. तो द ड्रॉबैक इज 11th कॉलेज डज नॉट फॉलो एनी प्रॉपर ऑर्डर. दे विल नेवर फॉलो द ऑर्डर. मैथ्स में, अकाउंट्स में ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है, दे हैव टू फॉलो द ऑर्डर. लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं है, इको में भी ऐसा नहीं है, कोई भी ऑर्डर में वो लोग टॉपिक सिखाएगा. सो व्हाट वी डू इज वी स्टार्ट अर्ली बिफोर योर कॉलेज स्टार्ट्स. हम एडवांस में रहेंगे. इज दैट क्लियर? वो लोग को कोई भी ऑर्डर में जाने दो, अपना वो टॉपिक हो जाएगा. फ्रॉम अवर एक्सपीरियंस वी नो के कौन सा कॉलेज क्या क्या पढ़ाता है. एक आध टॉपिक आगे पीछे होएगा. So we have to be in advance preparation 11th में. क्यों? सपोज तुम्हारा गुजराती कोटा में नहीं हुआ तो तुम क्या करेगा? You'll wait for the list. 2nd लिस्ट गया, 3rd लिस्ट गया, स्पेशल राउंड में तुम्हारा एडमिशन हुआ फॉर एग्जाम्पल. होना नहीं चाहिए, हो जाएगा, लेकिन स्पेशल राउंड में समझो तुमको जाना पड़ा फॉर एग्जाम्पल, तो तब तक कॉलेज वेट नहीं करेगा कॉलेज चालू करने के लिए. मतलब कॉलेज के जो मेन 2-3 राउंड हो गए, जिससे एडमिशन हो गए, डिवीजन भर गए, वो लोग कॉलेज चालू कर देगा. विच वी आर एक्सपेक्टिंग बाय जून एंड. कॉलेज चालू कर देगा. फिर स्पेशल राउंड जुलाई में निकलेगा, तुम्हारा जुलाई मिड में एडमिशन होएगा, और कॉलेज डिक्लेयर करेगा यूनिट टेस्ट अगस्त 1st वीक में. तो तुम तभी ऐसा बोलेगा, सर मैं तो जुलाई एंड में ही आई हूं कॉलेज में. तो कॉलेज बोलेगा वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है. मतलब कॉलेज स्टार्ट होते ही वो लोग क्या डाल देगा? यूनिट टेस्ट डाल देगा. तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड इन एडवांस. दैट्स व्हाई हम लोग इतना जल्दी शुरू कर रहा है. तो वी आर स्टार्टिंग ऑल आवर रेगुलर बैचेस फ्रॉम 1st वीक ऑफ जून सो दैट वी रिमेन इन एडवांस. इज दैट क्लियर? कॉलेज से आगे ही रहने का हमेशा. चलो, नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, लेट अस फोकस ऑन दिस टॉपिक. मेरे को एक बात बताओ, नंबर सिस्टम यू हैव स्टडीड, विच इज द फर्स्ट नंबर सिस्टम? परफेक्ट. Natural numbers which starts from 1 2 3. फिर नेक्स्ट होल नंबर्स में क्या आ जाता है? 0. उसके बाद
इंटीजर्स में नेगेटिव आ जाता है. फिर रैशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन. चलो परफेक्ट. फिर इरेशनल क्या है? रूट वाले नंबर्स. फिर अभी पहला नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल नंबर क्यू, इरेशनल नंबर क्यू डैश. ये सब जब ये एक पूरा सिस्टम में डालते हैं दैट इज कॉल्ड एज, मतलब रियल नंबर्स 10th स्टैंडर्ड तक वाज द फादर ऑफ नंबर सिस्टम. आज भी वो फादर ऑफ नंबर सिस्टम ही है. इज दैट क्लियर? रियल नंबर इज कॉल्ड फादर ऑफ नंबर सिस्टम. लेकिन हमारा टॉपिक जो है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर. अभी ये कंसेप्ट क्यों आया, कैसे आया, वो हम लोग देखेंगे. तो कॉम्प्लेक्स नंबर तक पहुंचने के लिए देर इज वन मोर मिडल कंसेप्ट विच इज कॉल्ड एज इमेजिनरी नंबर्स. कॉम्प्लेक्स नंबर तो उसके बाद आता है. तो हम सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट क्रैक कर रहे हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के लिए हमको इमेजिनरी नंबर्स पढ़ना जरूरी है. अभी ये तुम्हारा 10th से ही मैं कनेक्ट कर रहा हूं. 10th में तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हाँ या ना? व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस? ax square plus bx plus c is equal to 0. ओके, तो डेफिनेशन क्या है क्वाड्रेटिक का? The type of equation in which the degree is 2. That's it. Highest power is a quadratic equation. Okay. In short, an equation of the form ax square plus bx plus c is 0, where a, b और c क्या है? No. हाँ, a, b, c belongs